آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جاپان کا پنجاب میں عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ترقیاتی ایجنڈے پر اظہار اعتماد۔ فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ اور واٹر ڈسٹریبیوشن کی بہتری کے لیے 6 ارب 20 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جاپانی سفیر اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جاپان کا حکومت پنجاب کی طرف سے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ترقیاتی ایجنڈے پر اظہار اعتماد۔ جاپان کی جانب سے پنجاب حکومت کے لیے 6 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ۔ فیصل آباد سے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری کے لیے جاپان 6 ارب 20 کروڑ روپے گرانٹ دے گا۔ جاپان کے سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو خط لکھ کر حکومت پنجاب کی طرف سے گرانٹ کی فراہمی سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جاپان کے سفیر کے نام مراسلہ گرانٹ پر جاپان کی حکومت اور جاپان کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے جاپان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پنجاب کے عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے جاپان کے تعاون کو سراہتے ہیں، جبکہ جاپان کے سفیر کا کہنا تھا کہ فراہمی اور نکاسی آپ کی بہتری معیار زندگی کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ توقع ہے کہ جاپان کا معاشی تعاون پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ فیصل آباد میں ماہ سیام کے دوران مناسب قیمتوں پر معیاری اشیاء ضروریاں فراہم کرنے کے لیے ضلع بھر میں 19 رمضان بازار لگانے کا فیصلہ۔ اشیاء اور ضروری سامان کی کوٹیشن طلب کر لی گئی۔ فیصل آباد شہر میں 11 اور صدر کے علاقوں میں بھی بازار لگائے جائیں گے۔ رمضان بازاروں میں سبزیاں، پھل، مشروبات اور کھانے پینے کا سامان ارزہ داموں میسر آئے گا۔ فیصل آباد شہر میں 11 جبکہ تحصیل صدر میں 2 بازار لگائے جائیں گے۔ ضلع کی باقی 4 تحصیلوں میں مجموعی طور پر 6 بازار لگیں گے، جن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر میں سہولت بازار، جنگ روڈ، ماڈل بازار، ملت روڈ، ریاض شاہد چوک، سرسید ٹاؤن اور فوارہ چوک میں بازار لگیں گے۔ آئرن مارکیٹ، ڈی ٹائپ، کلیم شہید پارک، اکبر چوک، چھتری والی گراؤنڈ، نزد فیضان مدینہ بازار لگیں گے۔ تحصیل صدر میں تھانہ ڈجکوٹ جبکہ ٹھیکری والا میں دوسرا رمضان بازار ہوگا۔ گوجرا روڈ سمندری، چنیوٹ روڈ چک جمرہ، قائد اعظم روڈ تاندلیاں والا اور ریل بازار مامو کانجن میں بھی بازار لگیں گے۔ جمرہ روڈ چڑا والا اور کھڑیاں والا میں بھی سستا رمضان بازار لگے گا۔ بازار رمضان المبارک سے قبل ہی فعال کر دیے جائیں گے۔ کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں۔ بپھرے کورونا کے پے در پے وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں مزید 4 زندگیاں نکل گیا۔ 242 کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے۔ 193 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ جھنگ میں مزید 28 مریض سامنے آئے۔ ٹوبہ میں 15، چنیوٹ میں 6 افراد کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے۔ 193 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ جھنگ میں مزید 28 مریض سامنے آئے۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے خلاف انتظامیہ متحرک ہے۔ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں اور دکانیں بھی سیل کر دیں۔ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنرز نے 17 روز میں مجموعی طور پر 846 مقامات کو سیل کیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دکانداروں کو 11,62,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مجموعی طور پر 565 شاپنگ مالز و پلازے اور 188 ریسٹورنٹ سر بمہر کیے گئے۔ خلاف ورزی پر 37 شادی ہالز اور 56 نجی اسکولوں کو سیل کیا گیا۔ ٹوبہ میں لاک ڈاؤن کے باعث صدر بازار، تالاب بازار، چھوٹا کمیٹی بازار، پھولوں والا بازار سمیت شہر کی تمام دکانیں بند ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والی 13 دکانیں سیل کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے 25 سے زائد دکانیں سیل کر دیں۔ سیل کی گئی دکانوں میں موبائل شاپس، پکوان سینٹر، شوز شاپس، کلوتھ شاپس اور دیگر دکانیں شامل ہیں۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کا معاملہ کمشنر ثاقب منان نے گھنٹہ گھر اور کاروباری مراکز رات 8 بجے تک بازار کھولنے کی سفارشات حکومت پنجاب کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں کاروباری حضرات تعاون کریں تو پارکنگ مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رمضان مرزا۔ کمشنر ثاقب منان نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کا دورہ کیا، جہاں سرپرست اعلیٰ سمال چیمبر میاں ظفر اقبال اور دیگر تاجروں نے کورونا کے باعث شدید مسائل پر کمشنر کو بریف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بازار 6 بجے کی بجائے رات 8 بجے تک کھلنے کی اجازت دی جائے، جبکہ پولیس سخت کارروائی کی بجائے شائستگی کے ساتھ تعاون کرے۔ مکی مارکیٹ سمیت جگہ جگہ پارکنگ مافیا سے بھی کمشنر کو آگاہ کیا گیا۔ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی شفیق انجم کا کہنا تھا کہ 20 لاکھ بوری گندم کی قلت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کمشنر کے دورہ کو خوش آئند قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کر اپنے شہر کی ترقی کی طرف توجہ دیں تو یقیناً انشاءاللہ یہ شہر خوبصورت بھی ہوگا اور انوائرمنٹ بھی، اور کووڈ-19 کے اندر رہتے ہوئے کہ جو ایس او پیز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جائے، اور ہم ان سے اچھی توقعات وابستہ ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ اپنی جو خدمات ہیں معاشرے کے لیے اسی طرح سرو کرتے رہے۔
शफीक अंजम ने कहा किल्लत कम करने के लिए जंग और टोबा से भी गंदम ली जा सकती है। उन्होंने इल्जाम लगाया महकमा खुराक में हिस्सादारियां हैं, हमारे मसाइल कोई नहीं सुन रहा। कमिश्नर साकम मनान ने कहा फैसलाबाद कोरोना का मरकज बना हुआ है मगर सहूलियात महदूद हैं, खदशा है कि अस्पताल कहीं भर न जाएं, इसलिए अवाम एहतियात और तावन करे। कमिश्नर का कहना था कि सबके लिए यकसा फैसला किया गया है, ताहम रात 8 बजे तक हुकूमत को सिफारिश करेंगे। फिलहाल तो मुझसे वादा किया है कि ये 6 बजे की टाइमिंग की पाबंदी करेंगे, लेकिन इनकी जो बात है 8 बजे वाली और ख़ास तौर पे ये फरमा रहे हैं कि जी कराची में 8 बजे का टाइम हो गया है, वो हम ईवान बाला में इनकी बात पहुंचा देते हैं, उस पर जो फैसला होगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। कमिश्नर ने गंदम की कमी पूरी करने और पार्किंग मसाइल की हल की यकीन दहानी भी करवाई। सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल, सदर मुबीन सदीक सेंटर हाजी सरफराज और एग्जीक्यूटिव मेंबर स्मॉल चैम्बर शेख अब्दुल वहीद भी और इस मौका पर मौजूद थे। बल्दियात की बहाली के फैसले पर हल्का अहबाब और कारकुनों की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। नादर टाउन में चेयरमैन अरशद नाज के डेरे पर लीगी रहनुमाओं का इकट्ठ। बात करेंगे उस्मान हैदर से, उस्मान बताएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला दिया गया कि तमाम बल्दियाती अदारे जो हैं उनको बहाल कर दिया जाए और ऐसे में जो है वो तमाम चेयरमैन साहबान बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं उनमें एक खुशी की लहर है जो कि यकीनी तौर पर दिखाई भी दे रही है और हल्का अहबाब की जानिब से तमाम चेयरमैन साहबान को जो है वो बहाली पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। इस वक्त नादर टाउन में मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो तमाम लीगी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान में मुन्ना खान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर ये बताएगा कि बल्दियात को बहाल तो कर दिया गया है लेकिन ताहाल जो है वो ये देखने में नजर आया कि जो पावर्स हैं वो इन बल्दियाती अदारों को नहीं दी गई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया की जानिब से, तो किस तरह से आम आदमी के मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि सिटी 41 चैनल जो है वो हर इलाके की और हर जगह की खबर जो है वो बर वक्त पहुँचाता है। जहाँ तक आपने अपने इब्तदाइया में बयान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बल्दियाती इदारों की बहाली, ये जितने भी बल्दियाती नुमाइंदगान हैं ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं और ये कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं और ये कानून का रास्ता ही इख्तियार किया गया था जिसके तहत इनकी बहाली हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिक डेमोक्रेसी है और ये जो इनकी बहाली है ये हमारे कायद के बयानिए की जीत है, ये वोट को इज्जत दो की जीत है। इनको अवाम ने मुंतखब किया था, इनकी एक टेन्योर के लिए इनका इंतखाब था, उस टेन्योर को मुकम्मल किए बगैर इनको अपने इख्तियार से महरूम किया गया, इनको हक़ नुमाइंदगी से महरूम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग बहाल हुए। इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आज दिन तक एक धेले की करप्शन का कोई चार्ज वो है वो सामने नहीं आया। ये अवामी खिदमत कर रहे थे और उससे जितना पीरियड इनको महरूम रखा गया है मैं ये समझता हूँ कि वो पीरियड भी उसमें से निकाल कर इनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। अब जहाँ तक इनके बहाल होकर अपने चाय संभाल कर काम करने का ताल्लुक़ है, ये ऐसे लोग हैं अरशद नाज साहब, उसके साथ साथ काशिफ पाशा साहब, बुखारी साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जो एक दफ़ा नहीं ये मुतअद्दिद बार मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करते चले आ रहे हैं। ये सब जानते हैं और ये सरकार के किसी पैसे के मोहताज नहीं, ये अपनी जेब से खर्च करने वाले, मुखय्यर हजरात की मदद से अवामी खिदमत करने वाले ये अवामी नुमाइंदगान हैं और जो किसी भी सतह पर आज तक पीछे नहीं रहे। और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखिएगा ये एक आध दिन में उसकी डिटेल ऑर्डर भी आ जाएगा, इनको चार्ज भी देना पड़ेगा और इनको कोई हक नुमाइंदगी से बल्दियाती नुमाइंदों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट म्यूनसिपल अफसरान शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में नाकाम हो गए। पोस्ट इलाका, गर्ल्स कॉलेज रोड, मशकी शाह, पूर्ण पलादा और जजिस कॉलोनी सीवरेज मसाइल से दो चार है। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस आए रोज अंदरून शहर की सीवरेज पाइपलाइन चौक रहने लगी, जिससे मोहल्ला पूरन पलाद, गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, मुश्की शाह और जजिस कॉलोनी समेत दीगर गलियां मोहल्ले सीवरेज मसाइल से शदीद दो चार हैं, जबकि मकीन घरों में महसूर हो गए हैं। अभी मुश्की शाह डिग्री कॉलेज के सामने और ये आप जजेस कॉलोनी में देख लें, ये मेन जो है शहर के डिस्ट्रिक्ट के जज यहाँ रहते हैं, ये हाल है। पूरे शहर गंदगी का ढेर बन चुका है और इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही, वो सिर्फ आवाम से पैसे बटोरने में लगे हुए शहर को गंदगी का ढेर बना दिया है।
मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि शहर चनियोट को फिलफूल साफ सुथरा बनाया जाए। सीवरेज के स्थायी मकीनों का कहना है कि पिछले 48 घंटों से मसला मौजूद है। बार बार बताने के बावजूद किसी ने गंदे पानी की निकासी नहीं की, जिससे इलाके में ताफून फैल गया और सांस लेना भी मुहाल है और राहगीर भी शदीद अजियत से दो चार हैं। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से पानी के पाइप की बहाली और सीवरेज लाइन के जल्द मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट के हवाले से इजलास हुआ। शहर के वस्त में वाक़े लारी अड्डे को बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि लारी अड्डा को बाईपास के करीब मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि शहर के वस्त में होने की वजह से आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना होता है। लारी अड्डा के बिल्कुल पास रेलवे ट्रैक मौजूद है। जब फाटक बंद होता है तो ट्रैफिक की रवानी में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका लोगों के साथ मिलकर लारी अड्डा को बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। दोहरी तकलीफ होती है जिस वक्त रेलवे फाटक बंद होता है और अगर कोई हैवी ट्रैफिक आ गई हो तो बिल्कुल शहर जो है वो चौक हो जाता है। तो आज बड़ी सैरासिल गुफ्तगू हुई है। एक हमारी प्रपोजल है कि जिसके अंदर हम अड्डे को शहर से निकाल के शहर से बाहर ले जा रहे हैं। जिला इंतजामिया के इस इकदाम को शहरियों ने भी खूब सराहा। कहते हैं कि लारी अड्डा के बाहर निकलने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। वजारत तवानाई पावर डिवीजन का सारिफीन को अरबों रुपए का रिलीफ देने का फैसला। बिलों में नीलम जहलम सरचार्जेस खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को अरबों रुपए का रिलीफ देकर बिलों पर आयद नीलम जहलम सरचार्ज खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरब रुपए से जायद जमा होने वाला सरचार्ज सारिफीन को वापस किया जाएगा। फेस्को समेत दीगर कंपनियों में 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से हर माह नीलम जहलम सरचार्ज वसूल किया जा रहा था। दिसंबर 2018 में नीलम जहलम पावर हाउस वाबडा के सपोर्ट किया गया, ताहम नीलम जहलम सरचार्ज आयद रहा। नोटिफिकेशन में दिसंबर 2018 से अब तक जमा होने वाले सरचार्जेस का स्पेशल ऑडिट करवाने के भी अहकाम जारी किए गए। वजारत पावर डिवीजन ने तमाम कंपनियों के सरबराहान को मुरासला अरसाल कर दिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि लाखों रुपए डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों के अब लगेंगे कनेक्शन। फेस्को में 100 केवी और 200 केवी के कनेक्शन के मुंतसिर सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। शहर की मुख्तलिफ सब डिविजन्स को 180, 200 केवी और 140, 100 केवी के ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए। फेस्को हुकाम का कहना है कि डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सारिफीन के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। जायद लोड वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है ताकि शदीद गर्मी में सिस्टम ओवरलोड ना हो और सारिफीन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। फैसलाबाद कंज्यूमर कोर्ट ने शहरी को खराब LED देने के इल्जाम में चेंगहोंग रोबा ट्रेडिंग कंपनी को 70,000 रुपये जुर्माना कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरी सज्जाद मुर्शिद गिल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चिंगहोंग रुबा ट्रेडिंग कंपनी से LED खरीदी गई। LED घर आकर चलाई तो वो खराब निकली, जिसके बाद LED से मुतालिक शिकायत चिंगहोंग रुबा ट्रेडिंग कंपनी को दी, मगर उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में हो रही थी, जिस पर फाजिल अदालत के जज जावेद इकबाल ने जुर्म साबित होने पर चिंगहोंग कंपनी को 70,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिले के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए। सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतियाना की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, MPA सईद अहमद सईदी भी मौजूद थे। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत तमाम अदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। इस मौका पर सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने जिला भर में जारी तमाम तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली और इसके अलावा कोरोना की सूरत हाल बारे भी आगाह किया गया। सूबाई वजीर ने तमीराती महकमों को मनसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। जितने भी फंड्स इस वक्त यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और चारों तहसीलों में जिस तरह से फंडिंग थी उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से DC साहब की कारकर्दगी में ये काम जारी रहेगा। MPA सईद अहमद सईदी का कहना है कि जिला टोबा टेक्सिंग हुकूमत पंजाब की तवज्जो का खसूसी मरकज है। यही वजह है कि यहाँ माजी के बरक्स रिकॉर्ड मनसूबा पर काम जारी है। कीका बंगला रोड और शुरको रोड इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होगी। उस पर
खीखा रोड पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और शुरकुरगा रोड का जो टेंडर लग चुके हैं, इंशाल्लाह विद इन वीक इस पे काम शुरू हो जाएगा। कोरोना एसओपीज पर भी सख्ती से अमल दरामद कराए जा रहे हैं। शहरी बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें, जबकि रमजान मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की तलब के मुताबिक मुकर्रर नर्ख पर सप्लाई यकीनी बनाई जाए। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब ने गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर कर दी है। जिला में रमजान बाजार 25 शबान से फाल कर दिए जाएंगे। ओपन मार्केट में भी अशिया के नर्ख पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कपास और यॉर्न इंपोर्ट हो ना हो, हुकूमती कशमकश ने एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में हलचल मचा दी। एक रोज में 700 रुपए तक नीचे आने वाले बोरे में दोबारा इजाफे का खदशा बढ़ गया। इंपोर्ट की इजाजत होगी या नहीं, यॉर्न मार्केट में हलचल मच गई। एक रोज में 700 से जायद फी बोरा होने वाली कमी दोबारा बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। एशिया की बड़ी सूतर मंडी के ताजर कीमत के हवाले से परेशान हैं। सनतकार कहते हैं सूरत हाल बिगाड़ी जा रही है, यही हाल रहा तो फिर कीमतों में इजाफा हो सकता है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को वाज़ेह नहीं आ रही है कि अभी इन्होंने क्या करना है। कभी कहते हैं जी हमने जो बाहर से इंपोर्ट करनी है कॉटन, कभी कहते हैं नहीं करनी। उस वजह से मार्केट में अप डाउन हो रहा है। दूसरी जानिब कोऑर्डिनेटर टू मुशीर बराए टेक्सटाइल जफर इकबाल सरवर कहते हैं अभी समरी पेश होनी है। मंगल को काबीना इजलास में असल समरी जानी है जो मंजूर होगी। सिर्फ काबीना में इस पर बात हुई। इख्तलाफ राय सबका हक है। वहीद खालिक रामे कहते हैं कि अगर समरी मंजूर ना हुई तो ये हमारे लिए जहर कातिल साबित होगा। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसियों की जरूरत है। महकमा सुई गैस में सनती सारिफीन को रिलीफ मिल गया। साल 2021 के अख्ताम तक फैक्ट्रियों को सुई गैस पर हैवी ड्यूटी जनरेटर्स चलाने की इजाजत दे दी। SNGPL हुकाम के मुताबिक महकमे की शराइत पूरी करने के लिए सनती सारिफीन को दिसंबर तक का वक्त दे दिया गया। और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुतबादिल फसलों की काश्त को फरोग देने के लिए कोशा है। गोश्त जितने प्रोटीन की हामिल किनवा की 300 से जायद वैरायटीज पर तहकीक जारी है। दुनिया भर में खुराक के मसाइल और मुस्तकबिल में इसकी किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मुतबादल और सुपर फूड्स पर काम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की हामिल गजाओं को आम किया जा सके। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने भी सुपर फूड किनवा की काश्त के रुझान को फरोग देने के लिए तहकीकाती प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा कहते हैं कि किनवा में गोश्त जितने प्रोटीन मौजूद हैं, जबकि खालिस डेयरी और गोश्त की अदम दस्तयाबी या महंगा होने के बायस इस गजाई जरूरत को पूरा करने के लिए कीनवा इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो क्या करते हैं कि अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कुदरती सोर्स प्रोटीन का ढूंढें जो अनाज से मिल जाए, जो प्लांट से मिल जाए। तो उसके लिए 3 पौधे ऐसे एमरंथ, किनवा और चिया। तो उसमें से किनवा को यूनाइटेड नेशन ने भी हाईलाइट किया और 2013 को उसको सेलिब्रेट किया कि ये फ्यूचर की वो क्रॉप है कि जो कि फूड और न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है उसके लिए आ सकती है। तो किनवा को हाईलाइट किया। तो ये कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है, इसको आप खाते हैं, इसका मतलब आपको गोश्त की ज़रूरत नहीं है। कीनवा के तहकीकी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर इरफान अफजल का कहना है कि कीनवा की 300 से जायद वैरायटीज पर तहकीक जारी है। मार्केट में दरामद शुदा कीनवा 2000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मकामी पैदावार से हासिल होने वाला कीनवा 300 रुपए किलो पड़ रहा है। हमारा जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है इसमें 370 लाइनें हैं। अब 370 लाइनों में किनवा है, उसके अंदर सैपोनिन ज़्यादा है। सैपोनिन की वजह से आपको किनवा को 2-3 दफ़ा वॉश करके फिर आप यूज़ करते हैं। अभी हमारी जो नई लाइन आ रही है उसमें सैपोनिन बहुत कम है। स्वीट किनवा के नाम से वो वैरायटी है। और दूसरा जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया भर में कीनवा को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने UAF-Q7 के नाम से कीनवा की वैरायटी मंजूर करवा ली है, जिसे महकमा ज़राअत ने काश्तकारी के लिए रेफर कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।